Hello student, I am Dr. Pankaj Goyal. Today we will discuss solutions of first order partial differential equation by Charpit method. It's a very important method. In unit 1 in AKTU second year, there are the three important methods. First one is Lagrange method. We already discussed this method in our last video. So today we are taking Charpit method. The general method for solving non-linear differential equation. Charpit subsidiary equation is written as we will solve these equations by Charpit subsidiary equation. Like in Lagrange method, so here we can write this equation is written as dx upon, first we write dp upon minus sine of fx. Fx means derivative with respect to x of f. Here f of xy z pq is the given differential equation. We will differentiate with respect to x and then this p fz dp upon this, then we will write dq upon minus of fy plus q fz, and this can be written as dx upon fp, and then we can write dy upon fq, and this can be written as dz upon p fp plus q fq. This equation is said to be the Charpit subsidiary equation. Solving this, we will find out a relation between P and Q, right? So step one, find a relation between P and Q. Either we will find out the relation between P and Q, or we can find the value of P or Q in terms of x, y, z. Okay. Step number two, put in given equations. Put in given equations and find value of P or Q in terms of x, y, z. Step number 3. As we know that dz equal to dz can be written as del z by del x. This is by total differentiation dx plus del z upon del y dy. This can be written as p dx plus q dy. If we put the value of pq in terms of x, y, z, then by integration we can find the value of z. So we have to solve p dx plus q dy. So step number 1, find the relation between p and q. Step number 2, we'll find out, put the value in the given differential equation, find p or q in terms of x, y, z, and then we will put the p and q value of p and q in this given equation, this one, and then by integration we can find the value of z. This is the steps involving Charpit method. We take the questions. Let us suppose I say z square, that is equal to pqxy. Let us suppose this is the given question. We have to solve these questions. As we know, you can see that this is the PQ. PQ are the first derivative. That means first order partial differential equation.
It's non-linear because there is a product of PQ, right? So we suppose that let we consider a function f that is equal to z square, and we take this as left hand side, that is PQXY, right? Then we write the Charpit equations. Charpit equations that is equal to dx upon, that is equal to dx upon fp dy upon f of q dz upon xfp plus, sorry, pfp plus qfq, and that is equal to dp upon minus of fx plus pfz, and the value of this is equal to dq upon minus fy plus q of fz. Charpit equations. Okay, so we will write the derivative here. We will get from here dx upon fp minus of qxy dy upon fq, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पी एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू dz अपॉन पी एफ पी, मतलब माइनस ऑफ पी क्यू एक्स वाई, जहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ पी क्यू एक्स वाई, एंड दैट इज इक्वल टू dp अपॉन माइनस ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पी क्यू वाई प्लस पी एफ जेड हो जाएगा हमारे पास 2z. ओके, and that is equal to dq upon minus of minus pqx plus q into 2z. The Charpit equation. So our aim is to find the value of a relation between p and q, or find the value of p or q in terms of x, y, z. Okay. Now we take this one because if we take dp and dq, we can't find out anything. So take the multiplier p dx plus x dp. आपने क्यों लिया है मल्टीप्लाई? क्योंकि बिकॉज वी कैन राइट दिस इज एट डी ऑफ पी एक्स, दैट्स व्हाई राइट दिस वन, एंड इन डिनोमिनेटर यू कैन सी दैट if we add this one, pqxy will be cancel out, pqxy plus pqxy, and yeah, from here we get multiply by x, that is minus of 2p x, we get this one. This can be written as, again take other multiplier as q dy plus y dq, y of dq. When we write this one, we will get minus of y q 2z. Okay. Now we take these two multipliers. So we get from here this one and this one. Both the multiplier we can take. We can write d of px, that is upon minus of t minus of 2 p xz, that is equal to d of
y cube upon minus of 2q yz. We get this. z to z cancel, -2 से -2 cancel हो जाएगा ऐसे. We get from here dpx upon px. That means differentiation of this one. And dpy y cube upon y cube. By integrating this, we get from here logarithm of px equal to logarithm of qy plus logarithm of a, and this can be written as px upon qy, that is equal to a. From here we can write that p equal to a qy upon x. So we will get the value of p equal to this one. Put this into equation 1, get that given differential equations. So by given differential equations, z square equal to p q x y, p की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे a q y अपॉन x into q of x y. x to x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से हमारे पास. We get from here z square equal to a q square y. From here we can find the value of q equal to z upon root a y. From here we get root a y. Here is y square, so we will get this root a y. तो रूट आपका केवल a पे होगा, y पे नहीं रहेगा, राइट. So we can write p equal to, put the value of q here, we get a y upon x into z upon root a y. We will get root a z upon x. Okay. Then consider the total differentiation, that is dz. By total differentiation, we can write dz equal to p dx plus q dy. Put the value of pq here. We get from here root a z upon x dx plus z upon root a y dy. Solving this, z को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो dz upon z, that is equal to root a upon x dx and plus 1 upon root a y, and this is dy. We get this one, right? Integrate this one. By integration, we will get logarithm of z equal to root a log x plus 1 upon root a log y plus logarithm of b. Okay. So z equal to x की पावर root a y की पावर 1 upon root a into b. This is the
required solution. Like this, we can find out the solutions of first order partial differential equation. We take other example. Two zx minus px square minus 2q xy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन आया था AKTU 2013 का क्वेश्चन से। इसको सोल्व करके देखते हैं। चार पेट इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो डीपी अपॉन क्या था, डीपी अपॉन माइनस ऑफ एफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। 2z माइनस 2xp माइनस 2qy प्लस पी एफ जेड, एफ जेड क्या हो जाएगा यहाँ से 2x, दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा हमारे का माइनस ऑफ 2q x एंड प्लस q एंड दिस जेड के रेस्पेक्ट में क्या होगा आपका अगेन 2x। वी गेट दिस वन, राइट। यहाँ से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। बाकी हमें फैक्टर की फिलहाल जरूरत नहीं है, होगी तो हम पुट करेंगे। फ्रॉम हियर वी विल गेट डी क्यू अपॉन 0। तो फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम इन दोनों को लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ से डी क्यू इक्वल टू 0। तो वी गेट q इक्वल टू a। Put this value in given differential equation 1. We will get from here 2zx minus px square minus 2axy plus ap equal to 0. From here we get p ले लेते हैं कॉमन, a minus x square that is equal to minus of 2z x plus 2axy. We get this one. यहाँ से मिल जाएगा p इक्वल टू माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका z 2x प्लस ही ले लेते हैं, राइट। 2x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 2x अगर आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या आएगा ए वाई माइनस जेड अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर। वी गेट दिस वन, ओके। Now we can find out by the given total differentiation equations. So we can write dz equal to p dx plus q dy. We have to solve this one. Put the value of pq here. Put the value of pq here. We solve this one. सोल्व करें आप लोग, देखिए कैसे सोल्व होगा। एक मिनट, इसमें पी क्यू की वैल्यू को पुट कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट आपको करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे या इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से पहले पी क्यू की वैल्यू को पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू
पी क्या था हमारे पास 2x ए वाई माइनस जेड अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए डी वाई। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के यहाँ पे क्या करते हैं, ए डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले। देखिए हमारा मेन एम क्या है यहाँ पे सोल्व करने का, हमें किसी भी तरीके से टोटल डिफरेंस ये बनाना है, डिफरेंशिएशन बन जाए डिनोमिनेटर को ऊपर। मैं इसको यहाँ पे चेक करके देखते हैं, डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन ए वाई माइनस जेड एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करके आ जाएगा, देखिए यहाँ से लोगरिथम ऑफ ए वाई माइनस जेड एंड दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे था आपका एक्स स्क्वायर माइनस सी, राइट। इसको माइनस ऊपर लगा दूंगा तो काम चल जाएगा, इस माइनस को ऊपर लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन बनाने के लिए, माइनस यहाँ पे माइनस लिख देता, राइट, प्लस, दैट इज लोगरिथम ऑफ ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस logarithm of b. We can say ay minus z upon a minus x square that is equal to b. यही हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। यहाँ से आप z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इज द सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे कब आया था, AKTU 2023 में आया था क्वेश्चन हमारा, मैंने आई थिंक 13 लिख दिया, 2023 23 का क्वेश्चन है, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे पास आया था AKTU 2022 एंड 23, 2 साल आया। कई बार ये आपको सन सेम दिखेगा तो उसका रीजन ये हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन आपके पास रेगुलर में आया हो, एक कैरी ओवर में आ सकता है, इसमें भी पॉसिबल, राइट। और दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास चूंकि सेकेंड ईयर में पेपर 2 बार होता है, इवन ओड सेमेस्टर, तो एक ओड में हो एक इवन में, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है। ये हमने लिखा दिस इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू f। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बिट इक्वेशन लिखेंगे, 4 बिट इक्वेशन, चार बिट सब्सिडियरी इक्वेशन लिख देंगे। तो सबसे पहले डीपी ले लेते हैं, बिकॉज हमें डीपी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। डीपी अपॉन फार्मूला था हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स अगर आप लोगे तो क्या आएगा यहाँ से, पी प्लस पी एफ जेड। एफ जेड क्या है, एफ जेड हमारे पास है 0, दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ एफ वाई क्यू प्लस क्यू इंटू 0। इनको इन्हीं दो से सोल्व हो जाएगा, अगर रिक्वायर्ड होगा तो बाकी कंपोनेंट लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको लिखने की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। हमारा एम क्या है, हमारा एम है किसी भी तरह पी क्यू की वैल्यू निकालना, यहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डीपी अपॉन पी दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। यहां से हमारे पास आ जाएगा पी इक्वल टू ए क्यू आ जाएगा, इंटीग्रेट करके पहले लोगरिथम आएगा, लोगरिथम से इंटीग्रेट सोल्व करेंगे तो पी इक्वल टू ए क्यू मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। भाई इक्वेशन नंबर 1 वी गेट पी इक्वल टू ए क्यू रख दीजिए, पी एक्स प्लस ए, पी की वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ए क्यू एक्स
प्लस क्यू वाई दैट इज इक्वल टू पी क्यू। पी यहाँ पे पी की वैल्यू रख देते हैं ए क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी दिस वन, तो इसको लिख लेते दिस ए क्यू स्क्वायर and this minus of ax plus y into q इक्वल टू जीरो। तो आएगा q इक्वल टू जीरो, उसका कोई सेंस नहीं है, तो q इक्वल टू दूसरी हमें रूट मिल जाएगा यहाँ से ax प्लस वाई अपॉन ए, ये वैल्यू ऑफ q पुट कर देते हैं कहाँ पे, टोटल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन में। इजी मेथड है, अगर हमें फैक्टर मिल जाए, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने में आपको काम करना पड़ सकता है। सो वी कैन राइट dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे पी डी एक्स क्या हो जाएगा, ए से ए कट गया तो हो जाता है ए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन ए डी वाई। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू डी जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ए डी एक्स प्लस वाई। अगर आप ए एक्स प्लस वाई को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, ए डी एक्स प्लस डी वाई हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन पहले से दिया है। इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू वन अपॉन ए। अगर आप इसको टी मान लें, इस वाले ब्रैकेट को अगर आप टी मानेंगे तो क्या होगा, टी का टी स्क्वायर बाई टू। यू कैन राइट ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बाई टू एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी नीचे आएगा, दैट इज आएगा ए एंड दिस प्लस बी। हमारे पास आंसर यहाँ से हो जाएगा। ओके, वी गेट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ से। आपको देखिए मेथड समझ में आ रहा होगा, आसान मेथड है, बट थोड़ा सा क्या है कि इसमें आपको मटेरियल किताबों में कम है, इसलिए मैंने सोचा इसलिए कि इसके ऊपर अच्छा से एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि स्टूडेंट को थोड़ा सा पढ़ने में आसानी रहे। तो मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफर किया, तो ज़्यादातर बुक में क्वेश्चन इसमें नहीं है, एक या दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये देखिए एक 2023 का क्वेश्चन है, ये भी दो बार चूंकि पेपर होता है, जैसे मैंने आपको बताया एफ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं क्यू प्लस एक्स पी माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं चार पिट इक्वेशंस, चार पिट इक्वेशंस। चार पिट इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, देखिए डी पी अपॉन माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या आएगा, यहाँ से पी आ जाएगा प्लस पी एफ जेड, एफ जेड हो गया जीरो, दैट इज इक्वल टू टू क्यू अपॉन माइनस ऑफ एफ वाई, एफ आई होगा जीरो प्लस क्यू एफ जेड इज जीरो। अगेन फ्रॉम हियर वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप सोल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए डी क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू ए मिलेगा बाय द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्या जाएगा, यहाँ से क्यू की जगह ए रख दीजिए, दैट इज पी स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस ए इक्वल टू जीरो। वी गेट दिस। यहाँ से आप ए की वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यू कैन राइट पी इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस एक्स, यहाँ से आपके पास आ गया
या पी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस एक्स पी, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए अपॉन 2. We get this one. So we can write dz equal to b dx plus q dy. पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज dz इक्वल टू x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2 dx प्लस a dy. अब देखिए इसको आपको सोल्व करना है, इंटीग्रेट करेंगे इसको, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा. So we get from here z इक्वल टू 1/2, x का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस 1/2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 4a. इसका हमें करना है तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, क्या था हमारे पास 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4a एंड दिस प्लस 1/2, यहाँ पे आ गया आपका 4a एंड लोगरिथम ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a, ये होगा दिस वन, राइट, प्लस ए वाई. ये हमारे पास सोल्यूशन रहेगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा बी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से. नेक्स्ट इज क्यू जेड माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस क्यू स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू 0. इसको एफ मान लेते हैं. ये ए के टी यू 2013 का क्वेश्चन है. तो भाई चारपिट मेथड, चारपिट इक्वेशन लिख दीजिए, डीपी अपॉन माइनस एफ एक्स, एफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 0 प्लस पी एफ जेड, एफ जेड हो जाएगा आपके पास क्यू, दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ एफ वाई. एफ वाई में क्या जाएगा आपके पास माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड दिस प्लस क्यू और एफ जेड भी हो जाएगा आपका क्यू, ये आ जाएगा. बाकी अगर हमें किसी रेशो की जरूरत पड़ेगी तो वी विल टेक, अदरवाइज वी विल स्किप. फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं. फ्रॉम हियर solving these two we have to find out the relation between p and q. We get dp upon pq that is equal to q upon माइनस ऑफ माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस 2q स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा. दिस वन, एक पावर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगी पी की, ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगी. यहाँ से मुझे मिल जाएगा, देखिए यहाँ से दिस पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू दैट इज इक्वल टू 0. वी कैन से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए. ये जो अपोन में 2 आएगा उसको आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में मर्ज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि आप देखेंगे पी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए आएगा, तो 2a मान लीजिए, a बाई 2 मान लीजिए, ऐसे मान लेंगे दिस 2 एंड a बाई लाइक दिस. सिंप्लिसिटी के लिए माना है, अगर नहीं भी मानेंगे तब भी आपका काम चलेगा. तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए आ, ओके.
तो इसमें अब ये वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, बाई इक्वेशन नंबर 1, वन में रख दीजिए क्यू जेड माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह ए आ गया, वाई इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल जाएगा क्यू इक्वल टू ए वाई अपॉन जेड। वैल्यू उठा के रख देंगे, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकल जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर होगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो यूजिंग सो डी जेड क्या था हमारे पास, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आए, लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। तो आप फ्रेंड को शेयर करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ओके, यहाँ से होगा दिस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस ए वाई अपॉन जेड डी वाई। एलसीएम लेके जेड को बाहर निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, जेड डी जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के दो ही तरीके हैं, या तो आपका सिंगल वेरिएबल हो जाए या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने की हम कोशिश करेंगे, जेड डी जेड माइनस ए वाई डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके देखते हैं वो सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे पास। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा dx। अब देखिए क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास ऊपर बन रहा है क्या, ये हमें चेक करना है। तो ये यहाँ पे आपके देखिए डिफरेंशिएशन में हमारा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ए वाई था, राइट, ए वाई ए वाई था। तो डी जेड माइनस हो गया जेड डी जेड माइनस ए वाई डी वाई। यहाँ से जेड स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर का क्या जाएगा, एक को तो नहीं आ रहा है इसमें। ना तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करके देन इसको फर्दर आप इसको सोल्व कर देंगे, राइट। सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, आई थिंक यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। टी इक्वल टू जेड प्लस क्यू वाई होल स्क्वायर। ये पीसीएस में आया था क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में पूरा 92 में आया था एक बार। इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। पी माइनस जेड प्लस क्यू वाई होल स्क्वायर, इससे लाइक दिस एफ मान लेता है, दैट इज इक्वल टू 0। लिखते हैं यहाँ पे चार पेट इक्वेशंस।
इंपोर्टेंट मेथड है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन पेपर में 7 नंबर का आएगा, लैग्रेंज या चारपेट। दो कई बार पेपर में दोनों मेथड भी आए हैं, कई बार एक मेथड भी आया, राइट। डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले के ऊपर कैसे आएगा। माइनस, तो चारपेट इक्वेशन ले लेते हैं, माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया 0 प्लस पी, मैं इसको एफ जेड ही रहने देता हूँ, ये दोनों तरफ से कट जाएगा, दिखाई दे रहा है मुझे। डी क्यू पोन माइनस ऑफ 0 प्लस क्यू एफ जेड। एफ जेड की वैल्यू निकालने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, क्योंकि एफ जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी इक्वल टू डू क्यू अपॉन क्यू। वी विल गेट पी इक्वल टू ए क्यू मिल गया। वैल्यू ऊपर रख देते हैं, तो बाई इक्वेशन नंबर दिस वन, एफ आई, नो एफ आई आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। माइनस ऑफ एफ आई हमें यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस क्यू वाई के इंटू क्यू विद माइनस साइन प्लस क्यू एफ जेड। यहाँ से तो फाइंड आउट नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ से एफ जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा है तो डी पी अपॉन माइनस पी एफ जेड क्या था यहाँ से हमारे पास, एफ जेड था देखिए माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस क्यू वाई के। यहां से आ जाएगा देखिए डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ -2 जेड प्लस क्यू वाई के इंटू क्यू, एंड दिस प्लस क्यू इंटू एफ जेड क्या था, -2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस क्यू वाई। यहाँ से देखिए, अब देखिए ये दोनों जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में डी क्यू के अपोन में, दोनों क्या हो रही है आपस में कैंसिल आउट हो रही है। 2 जेड प्लस वाई क्यू क्यू, 2 जेड प्लस वाई क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी क्यू इक्वल टू 0। डी क्यू इक्वल टू 0 का मतलब हो गया क्यू इक्वल टू ए, राइट। तो क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, क्या आ जाएगा देखिए यहाँ से ए रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, पी इक्वल टू जेड प्लस ए वाई होल स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को डीजेड में रखेंगे, देन इसको सोल्व करेंगे। सो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी जेड प्लस ए वाई होल स्क्वायर डी एक्स प्लस ए डी वाई। इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन, यहां से हमारे पास है दिस वन, अब देखिए अगर आप ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेबल नहीं है। देखिए इसके ऊपर में अगर मैं यहाँ पे लिखे जेड प्लस ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, बट ये जो हमारा फैक्टर है ये यहाँ से इंटीग्रेबल नहीं है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं आया। तो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे फैक्टर को लेंगे, ठीक है। दूसरे फैक्टर लेते हैं यहाँ पे डीपी अपॉन, ये वाला मेथड हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे इंटीग्रेबल नहीं है, ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। दूसरे मेथड पे आ जाते हैं, इसलिए डीपी अपॉन क्या आया था हमारे पास, यहाँ से आया था माइनस ऑफ 2p एंड जेड प्लस क्यू वाई।
इसको y के साथ में ले लेते हैं, dy। dy अपोन क्या था, एफ क्यू था। एफ क्यू क्या हो जाएगा, 2y जेड प्लस क्यू वाई। ये हो जाएगा जेड प्लस क्यू वाई, दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा मेरे पास डी पी अपॉन पी, दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। ये आ जाएगा। माइनस साइन को उधर ले आता हूँ, इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा यहाँ से, लोग पी इक्वल टू माइनस ऑफ लोग वाई प्लस लोग ए। दैट मीन्स पी अपॉन वाई इक्वल टू ए। वी गेट पी इक्वल टू ए वाई। कई बार क्या होता है, जो आसान दिखने में है, क्योंकि आईएएस अब पीसीएस में क्वेश्चन आया है ना, तो पीसीएस में इतना सिंपल तो नहीं आएगा सीधा वैल्यू रख के आ जाए, तो वो इंडिकेट नहीं हो रहा था। अगर वहां पे सोल्व करेंगे हमें लगेगा इंडिकेट हो जाएगा, तो ना हो पाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे कॉम्बिनेशन से सोल्व करना पड़ेगा, और हमारे पास कोई दूसरा वो नहीं है। ओके, अब लिखते हैं यहाँ से पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू निकालना है। भाई इक्वेशन नंबर 1 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, देखिए हमारे पास पी इक्वल टू जेड प्लस क्यू वाई होल स्क्वायर, ये था। यहाँ से क्यू वाई क्या होगा, क्यू वाई हो जाएगा हमारे पास पी माइनस, यानी हो गया पी की पावर 1/2 माइनस जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्यू इक्वल टू 1/y, पी क्या है हमारे पास, रूट ए वाई माइनस जेड। वी गेट दिस। ओके, अब ये पी क्यू की वैल्यू रख देते हैं एंड देन सोल्व करते हैं। देखिए पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस में चाहे आज हो चाहे पहले हो, हम कह सकते हैं कि हम बहुत टिपिकल हो गया, लेकिन पहले भी कभी भी आसान कभी नहीं रहा क्वेश्चन, उसमें अच्छा ही क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स हमेशा से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है, लेना ले कि ना ले, हमेशा स्टूडेंट सोचना पड़ता है। मैथमेटिक्स वाले भी कई बार आ, अगर आप हिस्ट्री देखें तो क्या करते हैं, आर्ट की सब्जेक्ट लेके आईएएस पीसीएस बने। ओके, यहाँ से हमने लिखा जेड डी जेड इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख देता हूँ, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में वैल्यू रख दीजिए, दैट इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू था ए वाई डी एक्स प्लस 1/y, तो क्या हो गया रूट, यहाँ से है हमारे पास रूट ए वाई। ओके, तो रूट ए रूट वाई अपॉन वाई, राइट, माइनस जेड अपॉन वाई, यानी होगा डी वाई, दिस वन, राइट। अब हम इसको देखते हैं कि वो इंटीग्रेशन हो कि अभी भी नहीं होगा, इसको चेक करना है हमें। ओके, इसमें से क्या करते हैं, y को कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ से आगे देखिए y डी जेड इक्वल टू, यहाँ से हमारा रूट ए बाई कुछ समथिंग गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ, एक सॉरी, पी अपॉन वाई नहीं आएगा, पी इक्वल टू ए अपॉन वाई आएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस में है ए अपॉन वाई, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ए अपॉन वाई इसको दोबारा लिख देता हूँ, या पी की वैल्यू हो गई हमारे पास, देखिए ए अपॉन वाई प्लस क्यू, यहाँ पे क्यू में भी सेम हो जाएगा, रूट ए अपॉन रूट वाई। ओके, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 1/y रूट ए अपॉन रूट वाई
minus z dy. So we get y dz is equal to यहाँ पे हो गया a upon y dx. We get a dx plus a upon root y root a upon root y dy minus z dy. z dy को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. ओके, क्यों लेके आना है? डी बनाने के लिए, राइट. इसको डी बनाने के लिए यहाँ ले आते हैं. y dz प्लस z dy. ओके, तो दिस इज अपॉन, this is equal to a dx plus root a upon root y dy. That is d of yz equal to a dx plus root a upon root y dy. अभी आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिख दीजिए इसको yz इक्वल टू ax प्लस रूट ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा y की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस बी. ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा इसका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए, एक दो क्वेश्चन और करता हूं, उसके बाद हम ये इसको वीडियो को कंप्लीट कर अपना समाप्त करेंगे. तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं. अब आप इसको आराम से बैठ के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो. देखिए, यहां से हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई चारपिट मेथड. Charbit method equations we can write dp upon minus of fx. अब देखिए fx क्या है हमारे पास, fx हमारे पास 0 है ना, प्लस पी एफ जेड. एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से, तो पी एफ जेड का एफ जेड रहने देता हूँ फिलहाल, दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस डी बाई, ये भी 0 है, प्लस क्यू एफ जेड. यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू रखने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें, पहले वाले में तो पड़ गई थी, इसलिए हमने उसको सोल्व कर लिया था. माइनस वो पी एफ जेड दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस क्यू एफ जेड. एफ जेड से एफ जेड का कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू रख के कट करिए, बिना रख के कट करिए, एक ही बात है. इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू ए क्यू आ जाएगा. ओके, पी इक्वल टू ए क्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 मान लीजिए, बाई इक्वेशन नंबर 1 पी इक्वल टू ए क्यू रख दीजिए. तो जेड स्क्वायर ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. यहाँ से क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, 1 अपॉन जेड स्क्वायर और ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1. वी गेट दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो क्यू इक्वल टू 1 अपॉन जेड एंड ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1, राइट. इन दोनों को उठाकर रख देते हैं कहाँ पे, सो बाई डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें उठाकर पुट कर दीजिए. तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, डी जेड इक्वल टू
ए क्यू, क्यू क्या था हमारे पास 1/z और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू हो गया 1/z स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ गया हमारा डी वाई। राइट, जेड वाले पोर्शन को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। ओके, तो जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड ए डी एक्स प्लस डी वाई। अगर आप स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को इसके अंदर वाले को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 ए स्क्वायर जेड होगा। तो 1/a स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लीजिए। राइट, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर जेड स्क्वायर की स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से देखिए हमारे पास सीधा जेड आ जाएगा। तो 1/2 ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। ये हमारे पर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी अगर प्रॉब्लम है कुछ भी इससे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल के पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लिखेंगे, आई विल ट्राई टू सोल्व इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, 9q स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इस पर आप मान लीजिए। ये भी IAS का क्वेश्चन है, आया था 90 में आया था, इसको भी सोल्व करके देखते हैं। तो डीपी अपॉन माइनस ऑफ एफ एक्स की कोई टर्म नहीं है, 0 प्लस पी एफ जेड की तो टर्म है इसमें, तो यहाँ से लिख देते हैं दिस एफ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ जेड ही रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे, जैसे पहले भी हमने सीधा डायरेक्ट यूज कर लिया था। माइनस वाई की भी कोई टर्म नहीं है, 0 प्लस क्यू एफ जेड। तो यहां से अगर आप देखेंगे सोल्व करके क्या आएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल टू डीपी अपॉन पी दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। वी गेट पी इक्वल टू ए क्यू, पी इक्वल टू ए क्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। 1 मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 पी की वैल्यू ए क्यू रख देते हैं। तो 16 ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। वी गेट दिस वन, क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 ए स्क्वायर प्लस 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर डिवीजन का। ओके, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू जेड। ये हमारा क्यू मिल गया। उठा के रख देते हैं कि इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसा मैंने बताया था, मैं कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास ये वीडियो है इसका आपको PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे से मैं कोशिश करेंगे, पिछली वीडियो को भी अगर पॉसिबल हुआ
वहां भी हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। ये मेरी एक कोशिश है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ पाए, क्योंकि अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो उसमें आपको रिवीजन करना इजी रहेगा। राइट। तो मैं इसकी ये जो पीडीएफ है इसको पीडीएफ बना के उसको आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा, और जो भी हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, कुछ जरूरी मटेरियल होगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पुराने साल के पेपर हो, राइट, या आपका कोई आपका क्वेश्चन बैंक हो, राइट, ये सारी चीजें मैं कहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन का आपको देखना है, वहां से आपको सारी चीज मिल जाएगी। या दिस वन। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटीग्रेट के लिए जेड वाली टर्म्स को उधर ले आते हैं हमारे पास। जेड अपॉन 1 - z², तो यहाँ पे ले लेते हैं आपके पास 1/2a। 2a, टू यहाँ पे ले, या यहीं पे ले लेता हूँ 1/2, एंड इसके साथ में डी जेड, दैट इज इक्वल टू 1/(16a²+9), तो यहाँ पे हो गया हमारे पास a dx+dy। ये मिल गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है, विद माइनस साइन, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से -1/4, और टी की पावर माइनस हाफ ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 - z² की पावर 1/2 अपॉन 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/(16a²+9). ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा ax+y, और साथ में प्लस b। ये हमारा सोल्यूशन रहेगा। तो स्टूडेंट, आज आपने डिस्कस किया 4 फीट मेथड फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। एग्जाम में अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट है, फायदा हो, कुछ आए, तो उसको कमेंट जरूर करें। कमेंट से क्या फायदा होगा, कमेंट से फायदा होगा जो स्टूडेंट है, जो आपके जूनियर्स हैं, जो और आपके आने वाले और स्टूडेंट है, उनको वीडियो को सिलेक्ट करने में इजी रहेगा, इसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, थैंक यू।